चलो भाई, जो आज जो तारीख है वो है हमारे पास 10 जनवरी। ठीक है, तो 10 जनवरी में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। पहला है काला आज़ार डिजीज़। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे। सोशल जस्टिस में है काला आज़ार डिजीज़। वाई इन न्यूज़ देखते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ काला आज़ार डिजीज़ देखेंगे। ठीक है, ग्लोबल एंड नेशनल स्टेटस क्या है वो देखेंगे। फिर ट्रांसमिशन साइंस एंड सिम्टम देखेंगे। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स। ग्लोबल में क्या है, इंडियन में क्या है, नेशनल काला आज़ार हो जाएगा। ठीक है, फिर बर्ड स्पेसिस काउंट इन डिपोर बेल, ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। बर्ड स्पेसिस काउंटेड ये है। फिर ड्राफ्ट नॉर्म्स अनाउंस्ड बाय यूजीसी फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये है आज की चर्चा। अच्छा, फिर क्या है द इंडियन डायस्पोरा। फिर ये देखेंगे, सब देखेंगे। रैपिड फायर करंट अफेयर्स में विजडम टीथ डीएनए अबाउट कंक्लूजन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले हम बात करने वाले काला आज़ार डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें पहले वीडियो मिल रही है, इसको देख लेते हैं टू द पॉइंट की। आगे फिर आगे बढ़ते हैं। Hello and welcome to another series of To The Point. I am Sonali. Today's topic of discussion is black fever, that is Kala Azar. First of all, let's see why is it in the news. Recently, districts of Bengal reported cases of black fever or Kala Azar disease. Kala Azar is the second largest parasitic killer in the world after malaria. Now let's discuss about Kala Azar or Leishmaniasis. Kala Azar or visceral leishmaniasis is a protozoan parasitic disease spread by sandfly bites. Sandflies are brown in color and have hairs on their bodies. The flies are infected with the parasite called Leishmania donovani. The vector sandfly is known to live in cracks and crevices of muddy houses, especially in dark and humid corners. According to the World Health Organization, that is WHO, there are three main forms of leishmaniasis. Visceral leishmaniasis, which affects multiple organs and is the most serious form of the disease. Cutaneous leishmaniasis, which causes skin sores and is the most common form. And mucocutaneous leishmaniasis, which causes skin and mucosal lesions. Visceral leishmaniasis, known as Kala Azar in India, is the most serious form. Now let's have a look at its symptoms. Irregular bouts of fever over many days, weight loss, enlargement of the spleen and liver, and anemia are known symptoms. The skin may become dry, thin, and scaly in patches, and hair may be lost. In people with a light skin tone, grayish discoloration of the skin of hands, feet, abdomen, and face may be seen. This is why the disease is called black fever. Now let's understand about its treatment. Leishmaniasis is a treatable and curable disease which requires an immunocompetent system. Thus, those having a weak immune system are prone to get severely affected. All patients diagnosed require prompt and complete treatment. Vector control is recommended by the WHO, which means reducing the transmission of disease by decreasing the number of sandflies. Now let's discuss about National Kala Azar Elimination Program. Initially, the government aimed to eliminate the disease in India by 2015, but that deadline was missed. However, the number of cases has been brought down significantly through the National Kala Azar Elimination Program. India signed a tripartite Memorandum of Understanding, that is MOU, with Bangladesh and Nepal to achieve Kala Azar elimination from the Southeast Asia region, that is SEAR.
Presently, all programmatic activities are being implemented through the National Vector-Borne Disease Control Program, that is NVB-DCP. NVB-DCP is an umbrella program for prevention and control of vector-borne diseases. It is subsumed under National Health Mission, that is NHM. Now it's time for the practice question. Consider the following statements with reference to the visceral leishmaniasis. 1. Visceral leishmaniasis is a protozoan parasitic disease spread by sandfly bites. 2. According to the WHO, that is World Health Organization, there are 3 main forms of leishmaniasis, in which cutaneous leishmaniasis is the most serious form. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, or neither 1 nor 2? Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for the next episode. Thanks for watching. Have a great day. Dear viewers, watch this topic in Hindi on our Drishti IAS Hindi YouTube channel. गांधी की हत्या कर दी और गोडसे की आवाज को दबा दिया गया। समय ने उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। ये फिल्म दे रही है, आमने सामने है गांधी और गोडसे, और उनके बीच होता है विचारों का युद्ध। अगर इस संसार को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो हिंसा को, हर तरह की हिंसा को छोड़ना होगा। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। ये भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्लैक फीवर यानी काला जार की। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये खबरों में क्यों है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में ब्लैक फीवर या कालाजार रोग के कम से कम 65 मामले सामने आए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल से कालाजार व्यवहारिक रूप से खत्म हो गया था, लेकिन अब इन मामलों ने राज्य में चिंता पैदा कर दी है। आइए समझते हैं कालाजार के बारे में। आंत का लिशमेनियासिस को कालाजार के रूप में जाना जाता है। यह प्रोटोजोआ परजीवी लिशमैनिया डोनोवानी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है, जो संक्रमित मादा बालू मक्खी यानी सैंडफ्लाई के काटने से फैलती है। लिशमेनियासिस के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला, आंत कालाजार इसका सबसे गंभीर रूप है। दूसरा है त्वचीय, जो सबसे आम प्रकार है, और तीसरा है म्यूकोक्यूटेनियस। कालाजार के कारणों की बात करें तो यह प्रायः कुपोषण, विस्थापन, खराब आवाज, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और वित्तीय संसाधनों आदि की कमी से प्रभावित लोगों में आसानी से फैलता है। WHO के मुताबिक लिशमेनियासिस का एक कारण पर्यावरणीय परिवर्तन भी है।
गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर इसके सालाना करीब 7 लाख से 1 मिलियन नए मामले सामने आते हैं। कालाजार के लक्षणों की बात करें तो इसमें शामिल है कई दिनों तक अनियमित बुखार, वजन कम होना, प्लीहा और यकृत का बढ़ना, एनीमिया, शुष्क त्वचा, बालों का झड़ना आदि। हल्की त्वचा वाले लोगों में हाथ, पैर, पेट और चेहरे की त्वचा का रंग भूरा हो जाता है, इसलिए इसे ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। कालाजार के उपचार या बचाव की बात करें, यह एक इलाज योग्य बीमारी है। अनौपचारिक छोड़ दिया जाए तो यह घातक हो सकती है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के इससे गंभीर रूप से प्रभावित होने का खतरा है। इसमें शीघ्र और पूर्ण उपचार की आवश्यकता होती है। इसके उपचार के लिए एंटी लिशमेनियल दवाएं भी उपलब्ध हैं। WHO रोग के संचरण को कम करने हेतु कीटनाशक, स्प्रे आदि के इस्तेमाल पर जोर देता है। भारत में कालाजार की स्थिति को देख लेते हैं। सन 1875 से 1950 के दौरान असम में कालाजार महामारी फैलने के कारण कामरूप, गारो हिल्स, गोलपारा और नागांव में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के चलते इसके मामलों में काफी कमी आई है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र यानी SEAR से कालाजार उन्मूलन हेतु बांग्लादेश और नेपाल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। वर्तमान में सभी कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NVBDCP के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। यह वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु एक व्यापक कार्यक्रम है। इसे राष्ट्रीय मिशन NHM के तहत शामिल किया गया है। चलिए अब ब्लैक फीवर पर आधारित अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। लिशमेनियासिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, विसरन लिशमेनियासिस एक प्रोटोजोआ परजीवी रोग है जो सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। दूसरा, WHO के अनुसार त्वचीय लिशमेनियासिस इस रोग का सबसे गंभीर रूप है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। Tinggi nama ini tangga, di mami ya sakit lagi orang ini tinggi nama nan, kita gelowet kita kalau sakit tinggung, gile robi ini gile sakit ya termes, soalnya kita itu tinggi dari bumut. Kala-Azar is a deadly disease transmitted by sandflies that make their home in disused termite mounds. Worldwide, it affects as many as 12 million people, and here in Kenya, many of the victims are young boys who get bitten while out herding animals. Until recently, it was frequently a death sentence. But in 2006, the medical charity Médecins Sans Frontières, or MSF, opened a clinic in Kachileba with the sole aim of treating Kala-Azar. Dozens are treated here every month. No fever, actually doing fine. No, we complaints 14 days into treatment, yeah? Yeah.
Okay, the spleen was 15. Maybe let's do a check on the spleen. Huh? No, it's okay. 11. Kala-azar is basically a disease caused by a parasite, and the parasite basically causes fever and an enlarged spleen and weight loss. If it goes untreated, the fever is going to continue, weight loss is going to continue, patient will become more and more anemic, which means loss of red blood cells. They will get weaker and weaker, and eventually they are going to die. Treatment for Kala-azar is a daily injection for 30 days, and the success rate is almost 100%. But too many people continue to die of the disease because they live too far from health clinics, or because they simply don't know how to respond to an attack of Kala-azar. Others still defer to traditional healers. We see that quite often. It's marks done by traditional healers in an attempt to reduce the size of the spleen. The spleen is like here, and so over this area they kind of do slight cuts in an attempt to remove whatever is inside. But the key to tackling the disease is testing, and MSF want to see a rapid test replace the standard but dangerous and invasive splenic aspirate test. So, through a network of clinics established in market towns like this, they're compiling the data they need to demonstrate the reliability and efficacy of the rapid test. But even if the rapid test is widely adopted, Kala-azar looks set to remain a neglected disease. It's a neglected disease because drug companies aren't really interested in either developing new drugs or doing research into the most effective way to use the drugs that we've got, because it's in marginalised populations in developing countries. Now, India has set a target of eliminating Kala-azar from country by 2023. Leishmaniasis is a wide array of diseases caused by protozoa parasites of genus Leishmania. There are three main forms of leishmaniasis: visceral, cutaneous and mucocutaneous. Visceral leishmaniasis, also known as Kala-azar or black fever, is a neglected tropical disease. It occurs when the parasite migrates to the internal organs such as liver, spleen and bone marrow. Let's see its impact. Symptoms include fever, weight loss, fatigue, anemia and swelling of the liver and spleen. It is the second largest parasite killer in the world after malaria. Looking at the Indian scenario, in India more than 90% of the cases are contributed by Bihar and Jharkhand. Upendranath Brahmachari synthesized urea stibamine carbostibamide in 1920s and determined that it was an effective treatment for Kala-azar. ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀਨਾ ਕਾ ਯਹਾਂ ਲਓ जी ए निकल जा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। काला बुखार, ब्लैक फीवर आपने सुना है। भारत में 2014 में 9,200 के करीब केसेस आते थे। अभी 2021 में लगभग 1,200 के करीब केसेस आए, लगभग इरेडिकेट हो गया है काला आजार। देखिए, या तो आपको बैक्टीरिया से होगा कोई बीमारी, या वायरस से होगा, या प्रोटोजोआ से होगा। तो ये जो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है, ये छोटे छोटे खतरनाक मॉन्स्टर्स आपके सेल टिश्यू को इन्वेड करेंगे और बीमारी फैला देंगे। अमीबा, फ्लैजिलस, ये होते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, तो काला आजार जो है उसके केसेस मिले हैं बंगाल के 11 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड और बिहार में कुछ जगह पे केसेस मिले हैं। अब 60 के करीब केसेस जो है वो डिटेक्ट हुए हैं, जो कि थोड़ा सा सीरियस है। ठीक है, क्यों सीरियस है? क्योंकि वेस्ट बंगाल में काला आजार या ब्लैक फीवर लगभग इरेडिकेट हो गया है। हम बात करेंगे काला आजार क्या होता है, लेकिन आप समझिए कि यहां पे ऑफिशियल्स ने यही बोला है कि हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट में केसेस जो है मिले हैं
और अभी हम सारे केसेस को मॉनिटर कर रहे हैं और स्टेट विल बी एबल टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। परेशान होने की बात नहीं है, सिचुएशन संभाल लेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले काला आजार होता क्या है? काला आजार को विस्केरल लिशमैनियासिस कहते हैं, बहुत खतरनाक नाम है। जब हम लोग 10th में थे तो ये पढ़ते थे, ठीक है। 10th क्योंकि मेरा यूपी बोर्ड से था तो बायो की अलग किताब होती थी, तो उसमें लिखा था, तो भैया ये जो नाम है ना ये बड़े खतरनाक होते थे। और ये सैंड फ्लाई से ये होता है। सैंड फ्लाई पता है ना, ब्राउन कलर की होती है, सर पे बाल होते हैं उसके, ठीक है, एकदम मस्त हीरो टाइप की लगती है वो। और बेसिकली ना ये जो मडी हाउस होते हैं ना, जो कच्चे घर होते हैं उनमें जो क्रैक्स होते हैं ना वहां पे मिलती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि देखिए वैसे तो आजकल सभी के पक्के हाउस हो, पक्के घर है, मडी हाउस कौन बनाएगा जिनके पास इतना पैसा नहीं है। तो ये उन जगह पे ज्यादा होते हैं जो एरियाज थोड़े से बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, जो थोड़े गरीब होते हैं, उनको ज्यादा सैंड फ्लाई परेशान करती है। और अगर सैंड फ्लाई जो है वो इन्फेक्टेड है लुशमैनिया डोनोवेनी से, यही मेन वेक्टर होता है, तो फिर आपको काला आजार हो जाएगा, ठीक है, या ब्लैक फीवर। अब ये जो वेक्टर सैंड फ्लाई है, जैसा कि मैंने बताया, ये मडी हाउस जो कच्चे मकान होते हैं ना वहां पे रहते हैं। WHO के हिसाब से 3 तरीके के लिशमैनियासिस हैं, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक है काला आजार, ठीक है। अब ये जो डिजीज है ये पुअरेस्ट पीपल, जैसा कि मैंने बताया, इसमें इम्यून सिस्टम आपका बढ़िया होना चाहिए। अगर इम्यून सिस्टम आपका वीक है तो और मुश्किल। ऊपर से कच्चे मकानों में सैंड फ्लाई पाई जाती है, फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आजकल सैंड फ्लाई जो है ना वो ज्यादा देखने को मिल रही है। अब किस सैंड फ्लाई में काला आजार हो आपको नहीं पता है। तो इसीलिए जो गरीब लोग हैं, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, पुअर हाउसिंग, वीक इम्यून सिस्टम या लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि एक बार आपको ब्लैक फीवर हो गया तो खर्चा हो जाता है ना, तो वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। 90% नए केसेस जो हैं WHO के हिसाब से 10 देशों में आए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ये प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन 90% केसेस 10 देशों में आए, जिसमें भारत भी एक है। और अफ्रीकन कंट्रीज आप देख सकते हैं, ब्राजील हो गया, चाइना, इथियोपिया, इरिट्रिया, इंडिया, केनिया, सोमालिया, साउथ सुडान और येमेन, ये 10 देश हैं। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हिस्ट्री का जो सेशन बाद हो गया तो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट में केसेस मिले हैं। अब देखिए कलिंपोंग यहां पे इनफैक्ट, तो सोहेल सर आपको पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शन, हम बहुत ही कम दामों में आपको दे रहे हैं। तो ये हमारा आपसे वादा है कि इस बार यूपीएससी हम आपका निकलवाएंगे। और अभी मैं लाइव आ रहा हूं 12 बजे, तो आप जरूर आइएगा। वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं, दार्जिलिंग हिल स्टेशन, मालदा, उत्तर दिनापुर, दक्षिण दिनापुर, कलिंपोंग, यहां पे सबसे ज्यादा केसेस जो है वो पाए गए हैं। उसके बाद फिर बीरभूम हो गया, बंकुरा हो गया, पुरुला हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया। तो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट में केसेस मिले हैं। अब देखिए बिहार और झारखंड में भी कुछ केसेस मिले हैं, लेकिन यहां पे प्रशासन यही कह रहा है कि चीजों को हम कंट्रोल कर लेंगे। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात है, इसको ब्लैक फीवर क्यों बोला जाता है, ठीक है। पहली बात तो इसमें आपको बुखार आएगा और इर्रेगुलर रहेगा, बुखार आएगा उतरेगा, आपको लगा ठीक हो गया, लेकिन फिर बुखार एकदम से तेज आ जाएगा, फिर उतरेगा, तो सबसे बड़ी ये। उसके बाद आपका वेट लॉस होगा। भैया ब्लैक, काला मतलब आप समझ रहे हो, जहां पे काला जुड़ गया है वो बहुत डेंजरस है, ठीक है। आप एकदम सुकड्डी टाइप हो जाओगे अगर इसने आपको पकड़ लिया तो, भगवान ना करे पकड़े, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत तेजी से वेट लॉस होता है, आपका स्प्लीन बड़ा होता है, लिवर को ये इफेक्ट करता है। लिवर को वैसे ज्यादातर जो वायरस होते हैं ना वो लिवर के लिए डेंजरस होते हैं, ठीक है। और अनीमिया, और आपकी जो स्किन है वो एकदम ड्राई हो जाएगी, थिन हो जाएगी, पैचेस, एकदम डार्क पैचेस आपको देखने को मिलेगा स्किन पे, इसीलिए इसको ब्लैक फीवर भी बोला जाता है। और उसके बाद आपकी जो स्किन है, ठीक है, वही उसका जो कलर है वो धीमे धीमे चेंज होने लगेगा, ठीक है। आपकी स्किन जो है ना वो ग्रे में कन्वर्ट होने लगेगी, हैंड्स, फीट, एब्डोमेन, फेस, यहां पे भी, यानी कि पूरी बॉडी काली पड़ने लगेगी, लगेगा कि भैया कौन से सांप ने डस लिया है, इसीलिए इसको ब्लैक फीवर बोला जाता है। ट्रीटेबल है, बिल्कुल ट्रीटेबल है, दवाई से इसको ट्रीट किया जाता है, दवाइयां दी जाती है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको काला आजार या ब्लैक फीवर नहीं होगा। इसमें समझिए कि जिनका इम्यून सिस्टम बढ़िया है वो नहीं, और जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है दिक्कत। अब इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए क्या करें, जितना ज्यादा हो सके हेल्दी खाएं, जितना बढ़िया खाना हो सके, बैलेंस्ड डाइट हो सके, न्यूट्रिशियस डाइट हो सके वो ले, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा।
अब मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है बिल्कुल, वेक्टर कंट्रोल भी रिकमेंडेड है। देखिए अब इसमें या तो सैंड फ्लाई को मार दो, सारी की सारी सैंड फ्लाई को मार दो, तो ऐसे भारत में भी प्रोग्राम चला है, काला अजहर एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है भारत में चलाया है। और ये WHO ने भी बोला है कि भैया इसको कंट्रोल करने का यही तरीका है, जो वेक्टर है ना जहां से फैलता है आप उसी को ही खत्म कर दो, खेल खत्म। बाकी जो मेडिसिन हैं उनसे भी काला अजहर या ब्लैक फीवर को ट्रीट किया जाता है। बट क्या ये खतरे की घंटी है? देखिए वो तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, ये सैंड फ्लाई से होती है, ठीक है ना, ये सैंड फ्लाई से फैलती है। तो अभी फिलहाल कंट्रोल किया जा रहा है, देखेंगे आगे क्या होता है। आजकल बीमारियां जो है ना बड़ी खतरनाक खतरनाक टाइप की आ रही है। ठीक है जी, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही है, ठीक है। सोशल जस्टिस का है, ठीक है। काला अजहर GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, GS पेपर 3 उसमें किसमें, हेल्थ में। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। काला अजहर डिजीज़, लिशमैनियस, ब्लैक फीवर के नाम से आ जाएगा, ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरिसिस, GPELF, ये भी देख लेते हैं, GPELF। गांव के जीवन का अपना अलग ही आनंद है। ताजी हवा, शुद्ध खाना और सेहतमंद जिंदगी। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे जगह जगह कूड़े के ढेर, पानी का जमाव व बंद और गंदी नालियां जो मच्छरों के पनपने का कारण बनती हैं और विभिन्न बीमारियों को जन्म देती हैं। फाइलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी भी मच्छर के ही काटने से होती है। फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसे सामान्यतः हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। फाइलेरिया विश्व में अपंगता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। आप किसी भी उम्र में इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसका लक्षण हाथ पांव का सूजना और हाइड्रोसिल है। भारत सरकार भारत से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए 2 प्रमुख रणनीतियां बनाई गई हैं। पहली, सामूहिक दवा सेवन यानी MDA, जिसमें सभी फाइलेरिया संक्रमित जिलों में मुख्यतः आशा, आंगनबाड़ी व कहीं कहीं स्वयं सेवकों के माध्यम से वर्ष में एक बार 2 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं व गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी को DEC व एल्बेंडाजोल के रूप में फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाती है। और दूसरी रणनीति है मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट, जिसमें फाइलेरिया से ग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम में आशा बहनों की बहुत ही अहम भूमिका है। आशा स्वास्थ्य विभाग और समुदाय के बीच की एक अहम कड़ी है और सभी आशा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हमें उन पर गर्व है। MDA की तारीख निश्चित होते ही आशा बहन का काम शुरू हो जाता है। यह भी 100% सही है कि ठीक है। फिर है नेशनल काला अजहर एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर ब्रॉन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में बहुत सारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ वेक्टर ब्रॉन डिजीज। ये देखते हैं जरा एक बार, हैं डिजीजेस ये क्या होता है। उठने से लेके रात के सोने तक मैं उसके साथ रहती हूँ।
आई एम डॉक्टर रंजीता एंड यू ऑल आर वेलकम टू ज़ुनेक्सा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में। तो ये मेरी स्पेशल सीरीज है जिसमें हम पावर ऑफ 10 मिनट्स की बात कर रहे हैं। इस 10 मिनट्स में, इस सीरीज में आपको मैं 10 मिनट्स में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आज का कॉन्सेप्ट है अबाउट द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या होती है, वेक्टर क्या होता है और कौन कौन सी बीमारियां जो होती है किस किस वेक्टर से फैल सकती हैं। तो ये आपके यूपीएससी एज वेल एज सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम सभी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे अलॉन्ग विद पीडीएफ। तो अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में, तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती क्या है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आर द वो तरीके की बीमारियां हैं जो कॉज किससे होती हैं, कौन कॉज कर रहा है उसको, या तो कोई पैरासाइट इन्वॉल्व है, या तो कोई वायरस इन्वॉल्व है, या कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। वो डिजीजेस जो ह्यूमन बींग्स में हो रही हैं जिसके अंदर कोई पैरासाइट, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, जो किससे ट्रांसमिट हुआ है, वो ट्रांसमिट हुआ है किसी वेक्टर के थ्रू। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर आ गया और उसने हमें बीमार कर दिया। तो अगर हम बात करते हैं हर साल कितने ज्यादा बीमारियां होती है, 7 लाख से ज्यादा डेथ जो होती हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की वजह से होती हैं। अगर उन डिजीजेस की हम बात करें तो मलेरिया, डेंगू, शिस्टोसोमनियासिस, लेशमेनियासिस, ये सारी की येलो फीवर, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, ये सारी की सारी किस तरीके की बीमारियां, ये सारी की सारी जो है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के एग्जांपल हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या है, जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ उनसे फैल रही हैं, उसको फैलाने के लिए हमारी बॉडी में कौन यूज हो रहा है, वेक्टर यूज हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है वो, एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शन को, पैथोजेंस बिटवीन, कैसे, ह्यूमंस और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ह्यूमंस से ह्यूमन से भी ट्रांसफर कर सकते हैं वो, एनिमल से ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आते हैं मोस्टली जो वेक्टर्स होते हैं, मेनी ऑफ दीज वेक्टर्स आर ब्लड सकिंग। वो ब्लड मील के ऊपर फीड करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि वो ब्लड मील के ऊपर फीड करते हैं तो वही सेम वेक्टर जाके हो सकता है पहले किसी एनिमल को काट ले और वही सेम वेक्टर आके साथ में आपको फिर आपके खून के ऊपर आपको बाइट करता है। तो अगर वो वेक्टर जिसने एनिमल को बाइट किया फिर आके किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो उस एनिमल के ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन था तो वो उस ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। तो क्या होता है, वेक्टर्स आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स which injects disease producing microorganism during their blood meal। चाहे वो मच्छर की बात करें, चाहे वो मक्खी की बात करें, वो क्या कर रहा है, वो किसी एनिमल को या किसी और ह्यूमन बीइंग को बाइट कर रहा है और उसके ब्लड को ले लेता है। तो उस ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन था, कोई भी वायरस हो सकता था उस ब्लड के अंदर, कोई बैक्टीरिया हो सकता था, कोई प्रोटोजोआ हो सकता था उस पर्सन के ब्लड के अंदर, तो वो किसके अंदर आ गया, वो मच्छर के अंदर आ गया, मक्खी के अंदर आ गया। अब वही मच्छर मक्खी ने क्या किया, थोड़ी देर बाद जाके किसी और ह्यूमन बीइंग को काट लिया। तो जब वो दूसरे ह्यूमन बीइंग को काटेगा तो अब वो जो पहले वाले ह्यूमन बीइंग को डिजीज थी वो दूसरे वाले ह्यूमन बीइंग को ट्रांसमिट कर देगा। तो वेक्टर कौन है, वेक्टर है मच्छर या मक्खी या कोई भी और ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम बात करेंगे जो कि ब्लड मील के ऊपर फीड करते हैं। डिजीज किसको हो रही है, डिजीज उसको हो रही है जिसको वो काट रहा है सेकेंड टाइम पे या थर्ड टाइम पे, किसी भी टाइम पे। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा। वेक्टर जो होता है, वायरस बैक्टीरिया वेक्टर नहीं है, वेक्टर वो है मच्छर, मक्खी, चूहा जो कि आपके ऊपर, जो उसके ऊपर फीड कर रहा है, चूहे के ऊपर रहने वाला जो लाइस होता है वो, तो लाइस जो है वो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही वेक्टर बिकम इन्फेक्शियस, वंस द वेक्टर बिकम इन्फेक्शियस दे आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द पैथोजन। जैसे ही उसने ब्लड मील को खाया तो क्या होगा, तुरंत वो इन्फेक्शियस नहीं होगा, थोड़े देर टाइम लगेगा उसको, कुछ घंटे या दिन लग सकते हैं, क्योंकि जो उसने वायरस को खाया है या जो वो बैक्टीरिया उसके किसी इन्फेक्टेड एनिमल के ब्लड की वजह से जो बैक्टीरिया वायरस उसमें चला गया था वो पहले मल्टीप्लाई होगा, राइट। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वेक्टर बॉर्न डिजीजेस या वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो मच्छर वेक्टर हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लेना जरूर से, रट लेना। तो मॉस्किटो की वजह से क्या क्या हो सकता है, मॉस्किटो की वजह से हो सकता है चिकनगुनिया जो एडिस मॉस्किटो से होता है, डेंगू जो भी एडिस मॉस्किटो से होता है, मलेरिया जो एनाफिलिस मॉस्किटो से होता है, येलो फीवर एडिस से होता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से होता है। तो ये चार्ट को भैया रट्टा मार लेना बहुत अच्छी तरीके से पीडीएफ निकाल के। दूसरा क्या हो सकते हैं, टिक्स हो सकती हैं। टिक्स क्या करती हैं, उससे लिम्फ डिजीजेज हो सकती हैं और अलग अलग तरीके की डिजीज हो सकती हैं। टिक्स क्या कर रही है, वो किसी के ब्लड के ऊपर फीड कर रही है,
तो उसके अंदर भी हो सकती है मल्टीप्लिकेशन। एक्वेटिक स्नेल जो होती है वो भी वेक्टर हो सकती है, उससे शिस्टोसोमियासिस हो सकता है। वाटर फ्लीज हो सकती है, मच्छर मतलब एक तरीके के कीड़े जो पानी के अंदर रहते हैं उससे बीमारियां हो सकती हैं। बग हो सकता है, मक्खियां हो सकती हैं, फ्लाइज से क्या क्या हो रहा है, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोमियासिस टेस्टिस फ्लाइज से हो रहा है, सैंड फ्लाइज से लेशमेनियासिस हो रहा है, और ब्लैक फ्लाइज से होता है ओंकोरोसिरैकियासिस। तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन भी कर लेना आराम से बैठ के, और आप ये समझ लीजिए मैं आपको ये समझा रही हूँ वेक्टर क्या होता है। तो मच्छर वेक्टर हो सकता है, मक्खी वेक्टर हो सकती है, टिक्स वेक्टर हो सकती है, एक्वेटिक स्नेल वेक्टर हो सकती है, एंड सो ऑन। अलग अलग तरीके के बग्स, जो भी वेक्टर कौन होगा, वेक्टर होगा जो कि ब्लड के ऊपर फीड कर रहा है। किसको और इन्फेक्शन करेगा, जब उसके अंदर बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देगा। वेक्टर्स जैसे होते क्या है, ये आर्थ्रोपोड वेक्टर जो होंगे, आर्थ्रोपोड वेक्टर्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये बात आपको क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से क्या होता है कि वो जैसा बाहर का एटमॉस्फेयर होता है वो अपनी बॉडी को वैसी उनकी बॉडी बन जाती है। ठंड है तो ठंडे हो जाते हैं, गर्म होता है तो गर्म हो जाते हैं। तो वेक्टर्स को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और मॉइस्चर चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्पेशल तरीके के सेंसिटिव एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा और पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी होगी, तब वेक्टर्स जो है अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। आपने देखा होगा मच्छर जो है बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो भी मर जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी मर जाते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मच्छर और मक्खियां बहुत ज्यादा फ्लरिश करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो वेक्टर्स बॉर्न डिजीजेज होती हैं आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा क्लाइमेट होता है जिसका टेम्परेचर और उसकी ह्यूमिडिटी जो है वेक्टर्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमम होती है। इसीलिए आपको हमेशा ठंडी जगहों पे वेक्टर बॉर्न डिजीजेज नहीं मिलेंगी। तो कहाँ मिल रही है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो है हमारे को वेक्टर बॉर्न डिजीजेज मिलती हैं। और ये बहुत बड़ी आयरनी है कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेज सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में ही सबसे ज्यादा पुअर पॉपुलेशन रहती है और उन्हीं को सबसे ज्यादा वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होती हैं। तो ये इसी तरीके की आयरनी है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो होगा वेक्टर बॉर्न डिजीजेस ज्यादा होंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे वेक्टर की ग्रोथ के लिए पनप जाती हैं, होती हैं, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। बाकी की सारी चीजें आप पढ़ते जाइएगा स्लाइड में से। इस वाले चार्ट में आपको दिया गया है मच्छर से होने वाली डिजीजेस, चिकनगुनिया, डेंगू, फाइलेरियासिस, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, जीका फीवर। क्या है पैथोजन, कौन सा होगा, इन सब के अंदर वायरस होगा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के अंदर पैरासाइट होता है, पैरासाइट होगा, उसके अंदर कौन सा मच्छर होगा, ये सारे के सारे हो रहे हैं एडिस मच्छर से। फिर एनाफिलीज मच्छर से क्या क्या हो रहा है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी हो रहा है और मलेरिया भी होता है। एडिस से भी हो सकता है फाइलेरियासिस और एनाफिलीज से भी हो सकता है। क्यूलेक्स में क्या हो रहा है, क्यूलेक्स की वजह से जापानीज एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से भी हो सकता है और वेस्नील वायरस भी हो सकता है। अब देखिए आप सोचेंगे कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस तीनों की वजह से हो रहा है, हो सकता है भाई मच्छर ही तो है, उसको किसी और ऑर्गेनिज्म को काटना है, किसी और ह्यूमन को जाके काटना है, उसके अंदर अगर वो पैरासाइट है फाइलेरियासिस का तो वो उससे इन्फेक्ट हो जाएगा। कितने भी तरीके के मच्छर होंगे तो इन सभी तरीके के मच्छरों से हो सकता है। लेकिन चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया और जापानीज एन्सेफेलाइटिस ये स्पेसिफिक मच्छरों से ही हो रहा है, ठीक है। फिर आप और किससे हो सकता है, एक्वाटिक स्नेल से क्या हो सकता है, फ्लीज से क्या हो सकता है, सैंड फ्लाइज से क्या हो सकता है। ये वाला पूरा चार्ट को आप रट लीजिएगा। ये जितने भी चार्ट मैं इसमें दे रही हूँ वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स है। तो टिक्स से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं ये सारा इसमें दिया गया है। अगर हम बात मॉस्किटो की करते हैं तो मॉस्किटो के बारे में हम बात करेंगे तो ये सबसे खतरनाक वेक्टर है, मक्खी से भी ज्यादा। मक्खी कम से कम आपको दिख जाती है तो आप उसे दूर कर लेते हैं, मच्छर जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो मच्छर एज अ वेक्टर बहुत बहुत खतरनाक है, हर जगह पे होता है, आधी बार आपको पता भी नहीं चलता कब मच्छर काट के चला गया, तो इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इससे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, जीका वायरस, फाइलेरियासिस सब कुछ हो सकता है। रिपीटेड चार्ट्स में मैं आपको दे रही हूँ। ये डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मच्छर की टाइप, वायरस है या क्या है, बाइटिंग टाइम इसका क्या होता है, अगेन आपको चार्ट में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं फाइलेरियासिस की बात कर रहे हैं, या ये सभी के केस में होगा, मलेरिया के केस में भी ऐसा ही चलता है साइकिल। तो होता क्या है, देखो मॉस्किटो ने क्या किया, मॉस्किटो ने एक ब्लड मील के ऊपर फीड किया, फिर क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, ह्यूमन स्टेज, ओके ह्यूमन स्टेज नहीं, यहाँ पे आप देखिए मॉस्किटो टेक्स ब्लड मील फ्रॉम अ इन्फेक्टेड ह्यूमन से उसने ले लिया। अब क्या होगा, मॉस्किटो के अंदर पहले ग्रो करेगा ये जो पैरासाइट उसने खाया है, जो उसने खून के जरिए उसके बॉडी में आ गया मच्छर की बॉडी में, तो पहले वो पैरासाइट मच्छर की बॉडी में ग्रो करेगा कुछ दिन,
तो जब वो मच्छर की बॉडी के अंदर इतना ग्रो कर जाएगा कि अब वो दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करने के लिए केपेबल है, तो तुरंत नहीं करता। जैसे अभी काटा एक बंदे को मलेरिया है तो दूसरे बंदे को सेम मच्छर ने काट लिया, आप लोग सोचना शुरू करेंगे तो हम तो मलेरिया के पेशेंट के पास ही नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर मलेरिया के पेशेंट के पास आप बैठे हुए हैं, एक मच्छर आके उसको काटता है दोबारा और वही मच्छर आपको भी काटता है, तो आपको मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि पहले उस मच्छर के अंदर मलेरिया का जो पैरासाइट है या जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा। उसके बाद जो है मतलब मलेरिया पैरासाइट ग्रो करेगा पहले, तब जाके वो इन्फेक्ट करने की स्टेज में आता है। ये चीज आपको बहुत जरूरी तरीके से समझ लेनी पड़ेगी। तुरंत इन्फेक्ट नहीं करता, थोड़ा टाइम लेता है। जब तक मच्छर की बॉडी के अंदर ग्रो होगा उसके बाद वो इन्फेक्ट करेगा किसी और को। सैंड फ्लाई से क्या क्या डिजीज होती है ये आप पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट, दिस इज अबाउट द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। आई होप आपको समझ में आया होगा वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं। इस चार्ट में मैंने आपको सारी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को कंसोलिडेट करके दे दिया है। इसको पढ़ने के बाद ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत देखते हुए चलते रहते हैं, आगे देखते हैं भैया क्या है। एक मिनट, तो वाई इन न्यूज़ में देखते हैं। यहाँ पर है कि काला आजार के जो केसेस हैं इन इंडिया डिक्लाइन बाय 98.7% बिटवीन 2007 से लेकर 2022 तक। ठीक है, पहले कितने थे 44533, ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, से कितने आगे 834 तक एंड 632 इन एंडेमिक ब्लॉक्स। 99.8% स्प्रेड अक्रॉस बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल हैव रिसीव्ड एलिमिनेटेड स्टेटस लेस देन 1 केस पर 1000। ठीक है, द ओनली ब्लॉक दैट इज स्टिल इन द एंडेमिक कैटेगरी इज लिथीपारा इन पाकुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। वहाँ पे कितनी 1.23 केसेस हैं पर 10,000 पॉपुलेशन। अब एंडेमिक का क्या मतलब है, इसको हम देख लेते हैं। तो एंडेमिक डिजीजेस को देखते हैं भैया क्या है ये। ठीक है, एंडेमिक डिजीजेस एक बार देखते हैं। एंडेमिक डिजीजेस की स्पेलिंग क्या है? डिजीजेस की स्पेलिंग है DISEA, DISEA, एंडेमिक डिजीजेस। और पीछे भैया UPSC लिखना मत भूलो। ठीक है, ध्येय IAS को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। The novel coronavirus a few months back was declared as pandemic. Now, the World Health Organization has said that, like HIV, the novel coronavirus could become endemic and may never go away. Not only this, the WHO has also urged everyone to make massive efforts to contain the spread of this virus. In today's edition of our DNS, we will know what is endemic and when a disease is declared to be endemic. The coronavirus is no sooner going to leave our lives. Now, the WHO is also recommending us to make efforts to contain the spread of the virus. According to the WHO, this virus may become an endemic. As per the WHO Emergencies Director, even if a vaccine is available or found, coping with the disease would require a massive effort. There are trials and efforts both going on to develop vaccine, but the experts are still unsure about the effectiveness of the vaccine against the virus. To eliminate this virus from our world, the vaccine for this needs to be highly effective and available for all. Let us understand about an endemic disease. According to the US Centers for Disease Control and Prevention, a disease is endemic when its presence or usual prevalence in the population is constant. Some diseases like malaria and chickenpox fall in the endemic category as they are predictable number of cases
every year in certain parts of the world. The Dictionary of Epidemiology defines an endemic as the constant presence of a disease or infectious agent within a given geographic area or population group. It may also refer to the usual prevalence of a given disease within such an area or group. Often endemics are confused with epidemic. Epidemic refers to an outbreak of a disease. An epidemic occurs when a disease is spreading through one or more population. In contrast, the endemic disease is one that is constantly present in a group or geographic area. Pandemics are worldwide epidemics. Under certain circumstances, an epidemic can lead to a disease becoming endemic. According to an article published in the journal Science, when epidemics become endemic, they become increasingly tolerated, and the responsibility of protecting against it shifts from the government to the individual. This means that even though the government agencies will actively engage in tracking and identifying cases, the individuals themselves will be responsible for managing risk from the disease and seeking care. One mathematical modeling published in the Journal of Epidemiology and Community Health states that if RO, which is the rate at which the virus is transmitted, is equal to 1, then the disease is endemic. When RO is greater than 1, it implies that the cases are increasing and that the disease will eventually become an epidemic. If RO is less than 1, it implies that the number of cases of the diseases are decreasing. Here, RO refers to the number of people infected by a person who has the disease. The path of getting rid of this virus is really uncertain. Even the biggest of the economies are facing a lot of loss due to the lockdown imposed in order to save the people from this virus. We can further wait and hope for the vaccines to be made soon and be available for the people around the world. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक डिजीज़। ये क्या डिजीज़ हैं, कैसे होती हैं और किस तरीके से जो है ट्रांसमिशन देखने को आपको मिलता है, और प्लस इनमें मेन डिफरेंसेस क्या आते हैं। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, और मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं एक्चुअली जो इनका जो पॉइंट होता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। मेनली द कॉम्प्लेक्सिटी लाइक कोई कम एरिया में है, कोई ज़्यादा एरिया में है और कोई बहुत बड़े एरिया में है। तो वो देखते हैं अभी इस लेक्चर के अंदर। बाकी आप मुझे सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं, फेसबुक के ऊपर विपिन गोयल, डॉक्टर विपिन गोयल ऑन द इंस्टाग्राम एंड दिस इज द जीमेल आईडी। यहाँ पे अपना एबनॉर्मल कंडीशन होगी दैट इज कॉल्ड डिजीज। अब किस तरीके से जो कोई भी डिजीज जो होती है वो फैलती है, लाइक फॉर एग्जांपल पीपल वे जो हम लोगों से कैसे फैलेगी, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कोई कफ कर रहा है, कोई स्नीज कर रहा है, यानी कि कोई खांसी कर रहा है, छींक मार रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, किसिंग है, किसी बच्चे को भी आपने किस कर दिया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से कि हाँ कोई पर्सन जा रहा है, किसी भी तरीके का आपका टच हो गया पर्सन, तो उससे जो है ये बीमारी फैल सकती है। एनिमल से रैट्स, मॉस्किटो, टिक्स, पिग्स, ये सभी जो है इन सब से जो है बीमारी फैल सकती है। नॉन लिविंग सोर्सेज के कारण भी जो है बीमारी फैल सकती है, जैसे फूड और वाटर के अंदर जो है कंटेमिनेशन अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल मीट के अंदर कंटेमिनेशन आ जाए, क्योंकि उसके अंदर साल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है ये देखने को आपको मिलता है। बहुत सारे जो हैं केमिकल्स, हजार्डियस केमिकल्स भी होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आपकी जो रीज़न बन जाते हैं कि कोई डिजीज़ कैसे फैलेगी। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एन इंडेमिक डिजीज़। इंडेमिक डिजीज़ का मतलब क्या होता है। इंडेमिक डिजीज़ का मतलब होता है कि अगर कोई भी एरिया है
जिस इलाके में आप रहते हैं, पर्टिकुलर रीजन ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी कि जिस इलाके में अगर आप रह रहे हैं तो वहां पे जो है अगर बीमारी हो जाए तो दैट इज कॉल्ड इंडेमिक डिजीज। और ये जो होती है परमानेंटली होती है, ध्यान रखना, स्टैटिक है कांस्टेंट है ये, और परमानेंट आपकी जो है रहती है उस एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मलेरिया इज ए कांस्टेंट वरी इन द पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, कहने का मतलब ये है कि मलेरिया ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर है, पूरे जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर है, लेकिन कुछ ही पार्ट्स अफ्रीका के कुछ ही पार्ट्स के अंदर मलेरिया फैलता है, तो दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। सो मलेरिया इज एंडेमिक फॉर द अफ्रीका। सेम फॉर एग्जांपल जब हम बचपन में होते हैं, यंग होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हमें चिकन पॉक्स होता है, जिसे आप घर में नॉर्मल भाषा में हम कह देते हैं कि हाँ माता निकल आई, जो आपके फेसेस के ऊपर जो है पिंपल्स वगैरह निकलने लग जाते हैं, तो वो चिकन पॉक्स भी क्या होता है कि आपके बचपन के अंदर ही ज्यादा देखने को आपको मिलता है, उसका रेट हाई बचपन के अंदर ही देखने को आपको मिलता है। तो दैट मीन्स एंडेमिक क्या होगी आपकी, ये चिकन पॉक्स भी एंडेमिक होगी यंगस्टर्स के बीच में। दैट मीन्स ये परमानेंट है, ये होगी पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री के अंदर देखने को आपको मिलेगी। अब कुछ जो एंडेमिक डिजीज हैं ये आपकी डिफरेंट टाइप्स की हैं, लाइक फॉर एग्जांपल होलो एंडेमिक। होलो एंडेमिक का मतलब क्या है कि ये सभी की सभी पॉपुलेशन को, सभी पॉपुलेशन के अंदर जो है बच्चे हैं मेनली उनको जो है अफेक्ट करती है, मोस्टली द चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है। अब इसके अंदर जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो मलेरिया है ये एक होलो एंडेमिक डिजीज है, बचपन में हो जाता है, अडल्ट पॉपुलेशन इसके अंदर जो है आपका कोई भी जो है शो नहीं करता, कोई भी इनके होलो एंडेमिक डिजीज के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं देखने को आपको मिलते। और हाइपर एंडेमिक का मतलब क्या होता है, जो आपकी जो पर्टिकुलर एरिया में कॉन्स्टेंटली रहता है लेकिन हाई रेट के ऊपर, हाइपर मतलब हाई रेट के ऊपर, हाई रेट के ऊपर अगर वो बीमारी फैल रही है, कॉन्स्टेंटली फैल रही है और सभी एज ग्रुप जो है उसके अंदर इफेक्ट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर एंडेमिक। सेम एज हाइपो एंडेमिक, हाइपो मतलब कम, यानी कि किसी एरिया के अंदर जो है ये कम बीमारी फैल रही है, ये बीमारी उनको फैलेगी जिनकी कोई भी इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि बीमारी फैलने का रीजन सिर्फ ये होता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, अगर आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल है ही नहीं, जब बहुत कम है, तो आपको जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हाइपो एंडेमिक डिजीज देखने को आपको मिल सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडेमिक डिजीज। नाउ व्हाट इज एन एपिडेमिक डिजीज? एपिडेमिक डिजीज का मतलब क्या होता है? WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में क्या बताया है कि ऐसी कोई भी जो बीमारी है या इलनेस है जो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपको पता नहीं है कि वो एकदम से सडनली आ सकती है और इसके केसेस जो हैं आपके फटाफट जो है फैल सकते हैं, एक्सेप्टेड इन द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया के अंदर रहेगी, एक ही पॉइंट के अंदर रहेगी, बट वो नंबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ता चला जाएगा और इनका नंबर आपको देखने को मिलेगा कि 2 हफ्तों में या 2 हफ्तों से कम आपको देखने को मिले कि हाँ नंबर बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं जैसे अभी कोरोना वायरस है, अभी हमारे जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोरोना वायरस फैल रखा है। कोरोना वायरस जो पहले था वो एपिडेमिक डिजीज था, एपिडेमिक डिजीज था 11 फरवरी से पहले, क्योंकि WHO ने घोषित नहीं किया था कि वो पैंडेमिक डिजीज है, क्योंकि पैंडेमिक जो होता है वो पूरे बड़े लेवल के ऊपर होता है। एपिडेमिक डिजीज था उस टाइम पे मेनली जो है चाइना इफेक्ट हो रहा था, लेकिन बाद में जब पता लगा कि हाँ धीरे धीरे जो है वो पूरा वर्ल्ड के ऊपर फैल रहा है, तो चाइना के अंदर जो पर्टिकुलर एरिया में था, तो दैट मींस कोरोना वायरस उस टाइम पे एपिडेमिक डिजीज था और इनका नंबर एकदम से शूट हुआ था। और एपिडेमिक जो होता है वो आपके स्टॉर्म यानी कि तूफान वगैरह आ जाएं, फ्लड्स यानी कि बाढ़ वगैरह आ जाए, अर्थक्वेक, ड्रॉट, सूखा पड़ जाए, तो इन चीजों के कारण भी जो है एक एपिडेमिक आपका हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल लूं इंडिया के अंदर एपिडेमिक्स की, फॉर एग्जांपल जीका वायरस का एपिडेमिक देखने को मिला था, चिकनगुनिया का, डेंगू फीवर का। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरा इंडिया ही इफेक्ट हो जाता है, पर्टिकुलर एरिया में, खासकर कुछ एरिया के अंदर, जैसे आपका केरल वगैरह एरिया का, साउथ इंडिया के अंदर जो है आपको मेनली देखने को मिलता है ये एपिडेमिक्स, ऐसी कंडीशन देखने को आपको मिलती हैं। तो दिस इज एपिडेमिक डिजीज। नाउ व्हाट इज ए पेंडेमिक डिजीज? पेंडेमिक मतलब पैन मतलब ऑल, जो है बड़े लेवल के ऊपर, ऑल लेवल यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, और डेमिक मतलब अगेन पॉपुलेशन, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड जो है इन्फेक्शन आपकी फैल रही है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, पीपल हैं, वो ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं और उनकी डेथ भी बहुत ज्यादा देखने को आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि लोग 5 मर गए, 10 मर गए, नहीं, यहाँ पे नंबर हंड्रेड्स में चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक डिजीज। और WHO के अकॉर्डिंग
जो इन्होंने पेंडेमिक डिजीज की डेफिनेशन बोली है, ये कहते हैं कि एक आउटब्रेक है किसी भी पैथोजन का, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। एक पैथोजन जो है एक आउटब्रेक में देखने को मिलेगा जिसके अंदर जो है पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से बीमारी फैलेगी ऑल अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये जो बीमारी है पर्सन टू पर्सन फैलेगी ड्यू टू द न्यू पैथोजन। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट। सो हमने जाना कि जो एंडेमिक डिजीज है वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखने को मिलती है, एपिडेमिक डिजीज जो है कुछ पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलती है, और पेंडेमिक डिजीज जो है वो आपकी क्या देखने को मिलती है, पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर देखने को मिलती है। सो मेनली द डिफरेंस इज द कॉम्प्लेक्सिटी। एंडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया, एपिडेमिक कुछ एरियाज के अंदर, और पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड लेवल के अंदर देखने को आपको मिलती है। अब देखिए जी, हिस्ट्री ऑफ द पेंडेमिक डिजीज। अगर हम पेंडेमिक डिजीज की हिस्ट्री लें, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ब्लैक डेथ, ये जो थी 1350 के अंदर जो है ये आपकी पेंडेमिक डिजीज देखने को मिली थी। सेम एग्जांपल स्पेनिश फ्लू H1N1 वायरस जो है 1918 के अंदर पेंडेमिक डिजीज था। 1959 स्मॉल पॉक्स WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ कि ये जो है आपकी पेंडेमिक डिजीज है, इसको इरेडिकेट करो। इरेडिकेट करने के लिए जो है 1980 के अंदर जो है हमने इसको इरेडिकेट कर दिया था, और पहली बीमारी जो स्मॉल पॉक्स थी जो पेंडेमिकली जो है हमने इरेडिकेट कर दी थी, पूरे वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट करी थी। और सेम एज द इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो बीमारी थी H3N2 वायरस के कारण, ये भी आपकी पेंडेमिक थी। अब रिसेंटली अगर मैं कहूं कि अभी जो है कोरोना वायरस जो है ये भी आपका एक पेंडेमिक डिजीज है, पूरा वर्ल्ड जो है इससे इफेक्ट है। इसीलिए कल जब हमने देखा था जनता कर्फ्यू लगा था, तो जनता कर्फ्यू के बाद ही जो है नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलिब्रेशन कर दो कि हाँ रात को हमने 9 बजे जो है इसका पालन कर लिया जी, हमने पूरा दिन घर पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है, ये एक शुरुआत है, लड़ाई तो अभी बहुत ज्यादा बाकी है। अभी जितने भी सरकारों ने बोला है कि लॉकडाउन करके रखा हुआ है, बहुत सारे स्टेट जैसे पंजाब, चंडीगढ़, यूपी के अंदर आगे बहुत सारी स्टेट्स आ गई, हरियाणा, दिल्ली, तो यहाँ पे जो नंबर है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। इसीलिए आपको घर से नहीं निकलना, लॉकडाउन की सिचुएशन में रखना है। मतलब क्या है, आइसोलेशन बना के रखिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि आपने देखा होगा इटली, ईरान के अंदर देखा होगा कि नंबर तीसरे हफ्ते में कैसे शूट किया था, और नंबर हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पेंडेमिक डिजीज से हमें बचना है, बिल्कुल घर पे रह। ठीक है जी, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक और है, रिसेंटली द डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO प्रेडिक्टेड द नोवेल कोरोना वायरस। एक बार इसमें भी देखते हैं, WHO के बारे में बार बार आ रहा है तो इसको देख लेते हैं। तो देखो WHO में क्या है, ये लास्ट डेट कब हुआ था, जुलाई 2022 में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ, वाज फाउंडेड इन 1948। तो याद रखना भैया, जो WHO है वो फाउंडेड कब हुई, 1948 में। उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो बार बार आता है, अब इसको भैया समझ लेना है, ठीक है। तो कोई मुझसे पूछते कि WHO का अगर जो WHO हेल्थ से तो याद रहेगा ही, उसके बाद ये चीज़ याद रखना, फाउंडेड कब हुई, 1948 में। जो उसका हेड क्वार्टर है वो सिचुएट कहाँ पर है भैया, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और देयर आर 194 मेंबर्स स्टेट हैं भैया उसमें, और 150 कंट्री ऑफिस है, 6 उसमें रीजनल ऑफिस भी देखने को मिलते हैं। It is an intergovernmental organization and works in collaboration with its member state, usually through the ministries of health. ठीक है। The WHO provides the leadership on a global health matters, shaping the health research agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based policy options, providing technical support to countries, and monitoring and assessing health trends. It begins functioning on April 1st, 1948 से, इसको याद रखना, a date now being celebrated every year as a World Health Day, ठीक है। तो एक बार WHO के बारे में कोई वीडियो मिल जाए तो देख लेते हैं। WHO, अरे हो नहीं भाई, UPSC लिखना ना भूलें। लो भैया लो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इस सीरीज में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वागत है मैम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों WHO भी UN की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। WHO को एक डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड हैं और करंटली इसके 194 मेंबर स्टेट्स, 150 कंट्री ऑफिसेज और 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। ओरिजिन। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ। दोस्तों 1945 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, उसमें ज़ेमिंग ज़े, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मॉडर्न डे ताइवान से आए हुए एक डेलीगेट थे, उन्होंने यूएन के अंडर एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने की बात कही। कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल एल्गर हिस ने एक डिक्लेरेशन के थ्रू इसे एस्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन दी, जिसके चलते 1948 में WHO को एस्टैब्लिश किया गया और WHO यूएन की पहली ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी जिसे सभी मेंबर्स ने सब्सक्राइब किया। WHO ने अपनी वर्किंग 7 अप्रैल 1948 को शुरू की और इस दिन को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों WHO के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इंटरनेशनल हेल्थ वर्क पर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी के रूप में काम करना, यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, गवर्नमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशंस, प्रोफेशनल ग्रुप्स और ऐसी ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इफेक्टिव कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश एंड मेंटेन करना, हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने में गवर्नमेंट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करना और साइंटिफिक और प्रोफेशनल ग्रुप्स के बीच कोऑपरेशन को प्रमोट करना। गवर्नेंस। आइए अब एक नजर इसकी गवर्नेंस पर भी डाल लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। दोस्तों WHO की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहलाती है। हेल्थ असेंबली में डेलीगेट्स होते हैं जो मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हर मेंबर कंट्री के मैक्सिमम 3 डेलीगेट्स हो सकते हैं और इनमें से एक को चीफ डेलीगेट बना दिया जाता है। ये डेलीगेट्स हेल्थ के फील्ड में टेक्निकली कॉम्पिटेंट होते हैं और प्रेफरेबली मेंबर कंट्री की हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। फंक्शंस। ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को डिटरमिन करती है और इसकी फाइनेंशियल पॉलिसीज को सुपरवाइज करती है और साथ ही साथ WHO के बजट को रिव्यू और अप्रूव भी करती है। इसके अलावा ये WHO और UN के बीच हुए अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट भी करती है। द सेक्रेटेरिएट। अगर हम WHO के सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इसमें एक डायरेक्टर जनरल होते हैं और टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होता है। डायरेक्टर जनरल को हेल्थ असेंबली बोर्ड के नॉमिनेशन पर अपॉइंट करती है। मेंबर एंड एसोसिएट मेंबरशिप। मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस WHO के मेंबर्स बन सकते हैं, लेकिन WHO की फुल मेंबरशिप हासिल करने के लिए WHO के कॉन्स्टिट्यूशन को रैटिफाई करना पड़ता है। वर्किंग ऑफ WHO। आइए अब WHO की वर्किंग को समझ लेते हैं। दोस्तों WHO की कंट्री ऑफिसेज मेंबर नेशन की गवर्नमेंट के साथ प्राइमरी कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते हैं। ये हेल्थ मैटर्स पर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रेलेवेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन शेयर करते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट रिक्वेस्ट को WHO के दूसरे लेवल्स तक पहुंचाते हैं। इन एडिशन टू गवर्नमेंट्स, WHO UN एजेंसीज, डोनर्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज NGOs और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। WHO's कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड। दोस्तों WHO ने दुनिया भर में बहुत से हेल्थ मैटर्स में कंट्रीब्यूट किया है। 1948 से 58 तक WHO की मेजर अटेंशन उन स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीजेस पर रही जो डेवलपिंग कंट्रीज में लाखों लोगों को अफेक्ट कर रही थी, जैसे कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड वेनेरियल डिजीजेस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, एनवायरमेंटल सैनिटेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन पर भी खास ध्यान दिया गया। इन सालों में WHO ने UN एजेंसीज के साथ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप्स डेवलप की। 1958 से 1968 के पीरियड में अफ्रीका की बहुत सी कॉलोनीज को लिबरेशन मिला
और वे WHO की वोटिंग मेंबर्स बनी। WHO ने 1960s में वर्ल्ड केमिकल इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया और रिवर ब्लाइंडनेस, जिसे ऑनकोकेरशियासिस भी कहा जाता है, उसके वेक्टर से फाइट करने के लिए और शिस्टिसोमाइसिस के ट्रीटमेंट के लिए एक इंसेक्टिसाइड डेवलप की। 1968 से 78 के पीरियड में WHO ने अर्थ से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने में सक्सेस हासिल की। साथ ही साथ इस पीरियड में WHO ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर R&D के थ्रू फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। मलेरिया और लेप्रोसी को ट्रीट करने के नए तरीके निकाले। फोर्थ डिकेड यानी कि 1978 से 1988 के बीच अल्मा आटा में WHO और यूनिसेफ की ग्रेट कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी के लिए प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव प्राइमरी हेल्थ केयर की अप्रोच को इंपॉर्टेंस दी गई और यही अप्रोच वर्ल्ड हेल्थ पॉलिसी का भी सेंट्रल पिलर बन गई। इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड, दैट इज 1981 to 1990 का ऑब्जेक्टिव था सभी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट एक्सक्रीटा डिस्पोजल अवेलेबल करवाना। इसी पीरियड में ही सभी कंट्रीज को एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए एनकरेज किया गया, जिन्हें सभी पब्लिक फैसिलिटीज में अवेलेबल करवाया जा सके। इस दौरान ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी से इन्फेंटाइल डायरिया को कंट्रोल किया गया। 1995 में कोंगो में इबोला वायरस के आउटब्रेक में लैक ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ सर्वाइलेंस एंड नोटिफिकेशन सिस्टम्स का खुलासा हुआ, जिसके चलते 1997 में WHO ने कनाडा के साथ मिलकर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क दैट इज GPHIN को रोल आउट किया, जिसमें इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन पोटेंशियल एपिडेमिक्स के केस में अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेगी। WHO says most of the estimated 5 lakh maternal deaths each year are preventable through family planning. इसी तरह WHO ने कैंसर और टोबैको के अगेंस्ट भी फाइट किया। हेल्थ एजुकेशन को स्प्रेड किया, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, नॉन स्मोकिंग, प्रूडेंट यूज ऑफ अल्कोहल और हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस के सिंपल रूल्स को डिसेमिनेट किया। WHO एड्स से फाइट करने के लिए सेल्फ टेस्टिंग किट्स भी डेवलप कर रहा है, जिससे कि पेशेंट्स को अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन का पता लग सके और वे उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले सके। WHO एंड इंडिया। दोस्तों, 12 जनवरी 1948 को हमारा देश WHO का मेंबर बना। आइए अब देखते हैं कि WHO ने इंडिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। 1967 में WHO ने इंडिया में इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया और इंडियन गवर्नमेंट के सहयोग से 1977 तक स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया। The WHO country cooperation strategy, India 2012 to 2017 को Jointly Minister of Health and Family Welfare और WHO Country Office for India, that is WCO ने डेवलप किया। इंडिया को पोलियो फ्री बनाने में भी WHO ने अहम भूमिका निभाई है। So you've taken up running. Apple Watch has taken up a few new things as well. First, it tracked World Health Concerns and WHO। दोस्तों, WHO ने बहुत से वर्ल्ड हेल्थ कंसर्न्स में भी कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि 2019 में WHO ने एयर पोल्यूशन को ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल रिस्क बताया था। इसके अकॉर्डिंग हवा में मौजूद माइक्रोस्कोपिक पोल्यूटेंट्स हमारे रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स में पेनिट्रेट कर सकते हैं और लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, killing 7 million people prematurely every year. WHO ने बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल को एयर पोल्यूशन का प्राइमरी कॉज बताया। WHO के अकॉर्डिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज डायबिटीज, कैंसर और हार्ट डिजीजेस कलेक्टिवली 70% से भी ज्यादा डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अकॉर्डिंग 15 से 19 ईयर्स ओल्ड में सुसाइड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। WHO इन्फ्लुएंजा वायरसेस के पोटेंशियल पेंडेमिक स्ट्रेन्स को डिटेक्ट करने के लिए इनके सर्कुलेशन को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है। 2017 में टीबी के अराउंड 6 लाख केसेस रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट थे, द मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट लाइन ड्रग्स, और इनमें से अराउंड 82% लोगों को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस थी। WHO एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए ग्लोबल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट कर रहा है।
WHO's R&D ब्लूप्रिंट उन डिजीजेस और पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करता है जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कॉज कर सकते हैं, बट उनके लिए कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं हैं। इस लिस्ट में इबोला, जीका, निपाह, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के अलावा और भी कई पैथोजेंस मौजूद हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर यूजुअली हेल्थ केयर सिस्टम से लोगों का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, और फिर भी बहुत सी कंट्रीज में एडिक्वेट प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। WHO's ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। दोस्तों, WHO के सामने भी बहुत से चैलेंजेस हैं। WHO डोनर फंड्स पर डिपेंडेंट है और मेनली रिच कंट्रीज और फाउंडेशन से इसे डोनेशंस देते हैं, जिसके चलते इसके 80% फंड्स उन प्रोग्राम्स में यूज होते हैं जिन्हें डोनर्स चूज करते हैं, और अक्सर ज्यादा जरूरी हेल्थ प्रोग्राम्स अंडर फंडेड रह जाते हैं। 2014 में वेस्ट अफ्रीका के इबोला एपिडेमिक के दौरान WHO की बुरी परफॉर्मेंस के कारण इसकी एफिशिएंसी पर सवाल उठाए गए। 2019-20 में कोरोना पेंडेमिक के दौरान भी इसकी इनएफिशिएंसी देखने को मिली और इसके चलते यूएस ने WHO की मेंबरशिप से विड्रॉ कर लिया। आइए अब एक नजर यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस पर भी डाल लेते हैं। 2020 यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था, critically examine the role of WHO in providing global health security during the COVID-19 pandemic। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से WHO यूपीएससी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी मेंस में इसके करंट ऑपरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने WHO के क्रिएशंस, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही और भी बहुत से इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ एजुकेशन के साथ। ठीक है जी, एक बार फिर से रीड कर लेता हूँ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ, वाज फाउंडेड इन 1948। ठीक है। इट्स हेडक्वार्टर्स आर सिचुएटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, देयर आर 194 मेंबर्स स्टेट, 150 कंट्री ऑफिसेज, 6 रीजनल ऑफिसेज। ठीक है। It is an intergovernmental organization and works in collaboration with its member state, usually through the ministries of health. ठीक है। The WHO provides leadership on global health matters, shaping the health research agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based policy option, providing technical support to countries and monitoring and assessing health trends. ठीक है। It began functioning on April 7, 1948। तो अप्रैल 7 में ध्यान रखना है भैया। ठीक है। 1948, अ डेट नाउ बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ये क्या है भैया, इसको भी देख लेते हैं। तो खुले जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही हमारा। तो डेली अपडेट्स में है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। 8 अप्रैल 2019 में क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 7 एवरी ईयर। It is an initiative by the World Health Organization, ठीक है, WHO, to make people more aware of certain health issues। ठीक है। It is commemorated every year on April 7 because this was the date when WHO was founded in 1948। ठीक है। WHO was born on 7 April 1948 with a clear and ambitious vision, a world in which all people enjoy the highest attainable standard of health। ठीक है। The theme for this year's Health Day was Universal Health Coverage। कब की है ये? तो 2019 की है। चलो इस साल की भी देखेंगे थीम क्या आएगी। ये तो 2019 की थीम है। द थीम फॉर दिस, मतलब 2019 की जो हेल्थ डे की थी वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज थी। ठीक है। इस साल की भी देख लेंगे कि कौन सी थीम है, वो उस टाइम हमें पता चल जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मीन्स ऑल पीपल हैव एक्सेस टू द क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज दे नीड when and where they need them without financial hardship। ठीक है। MCA 21, it is a portal that has fully automated all the processes related to the enforcement and compliance of legal requirement under the Companies Act 2013। MCA 21, it is an e-governance
क्या है ये पोर्टल है MCA21 हैज़ द फुली automated all the processes related to enforcement and compliance of legal requirements under the Companies Act 2013. It is an e-governance initiative of the Ministry of Corporate Affairs MCA. अच्छा तो दूसरी न्यूज़ स्टार्ट होगी ना यहाँ से, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ और ये हमने देख लिया, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाओ दोबारा से, इसको काट दो। हाँ जी, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, ये बता दो ऑब्जेक्टिव्स में आप देख लेते हैं। टू एक्ट एज द डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क, ठीक है। टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव कोलैबोरेशन with the United Nations, specialized agencies, governmental health administration, professional groups, and such other organizations as may be deemed appropriate. To provide assistance to the governments upon request, it strengthening health services. To promote cooperation among scientific and professional groups which contribute to the advancement of health. How is it governed में क्या है कि World Health Assembly WHA is WHO's decision making body attended by delegations from all of the WHO's member states. It is held yearly at the headquarters of WHO, जो कि कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा प्रिपेयर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड remains the focus of this assembly. Since the start of the COVID-19 pandemic 2022, assembly is the first in-person assembly. In May 2022, World Health Assembly's 75th session was held at World Health Organization, ठीक है। फंक्शंस के बारे में हम बात करें तो क्या है, द हेल्थ असेंबली डिटरमाइंस द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट सुपरवाइजेस द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिव्यूज एंड अप्रूव्स द बजट, ठीक है। इट रिपोर्ट्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन अकॉर्डेंस विद एनी एग्रीमेंट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस. सेक्रेटरेट में हम बात करते हैं तो द सेक्रेटरेट कंप्राइजेस ऑफ द डायरेक्टर जनरल एंड सच टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एज द ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर. द डायरेक्टर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द हेल्थ असेंबली ऑन द नॉमिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑन सच टर्म्स एज द हेल्थ असेंबली में डिटरमाइंड, ठीक है। मेंबरशिप एंड द एसोसिएट मेंबरशिप के बारे में बात कर लेते हैं तो लिखा हुआ मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में बिकम मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Territories or groups of territories which are not responsible for the conduct of their international relation may be admitted as associate members by the health assembly. अच्छा, फिर नेक्स्ट है बता द contribution of WHO to the world. तो लिखा हुआ द country offices are WHO's primary contact points with government. They provide technical support on health matters, share relevant global standards and guidelines, and rely government requests and requirements to other levels of WHO. They also inform and follow up with the host government on reports of disease outbreaks outside the country. They provide advice and guidance on public health to other UN agency offices in country. In addition to the governments, WHO also coordinates with other UN agencies, donors, non-government organizations, NGOs, and the private sector, ठीक है। The benefit of WHO's international health work are reaped by all countries, including the most developed. For example, all nations have benefited from their contribution to the WHO program that led to the global eradication of smallpox and to promote better and cheaper ways of controlling tuberculosis. The organization believes that immunization, which prevent the 6 major communicable diseases of childhood, diphtheria, measles, poliomyelitis, tetanus, tuberculosis, and whooping cough, should be available to all children who need it. WHO is leading a worldwide campaign to provide effective immunization for all children in cooperation with the United Nations Children's Fund, UNICEF. ठीक है। During the first decade 1948-58, the WHO focused major attention on specific infectious disease afflicting millions of people in the developing countries. These include malaria, yaws, tuberculosis, and
venereal diseases. There was also high priority for maternal and child health services, for environmental sanitation, specifically safe water, and for standardization of drugs and vaccines. In these years, WHO developed close working relationship with other UN agencies. फिर next period है 1958 to 68 was much influenced by the national liberation in Africa of several former colonies, which became voting members of the organization. 1960. In 1960, the departure from the newly independent Democratic Republic of the Congo, nearly all foreign doctors created a massive emergency. Working with the International Red Cross, WHO recruited 200 physicians and other health workers and established a new fellowship program to enable scores of Congolese medical assistants to become fully qualified doctors. In this period, fellowships for health personnel development became a major WHO strategy in almost all countries. WHO stimulated and even collaborated with the World Chemical Industries in the 1960s to develop new insecticides for fighting the vectors of onchocerciasis, river blindness, and for treating schistosomias. ठीक है, फिर a demonstration that tuberculosis could be effectively treated without expensive sanatorium care was a great breakthrough of the late 1950s. Even the mundane standardization of the nomenclature of disease and cause of death was an important contribution of WHO to international health communications. थर्ड डिकेड के बारे में बात कर लेते हैं. 1968 to 78 of WHO included the great victory of eradicating smallpox from the earth. In 1967, smallpox was still endemic in 31 countries, afflicting between 10 and 15 million people. The work was done by the teams of public health workers in all the countries affected, with WHO serving as leader, coordinator, and inspirations. Millions of dollars were saved worldwide by this achievement, which overcome various national rivalries and suspicions. The momentum of this great campaign added strength to another drive, expanding the immunization of the world's children against 6 once ravaging diseases: diphtheria, tetanus, whooping cough, measles, poliomyelitis, and tuberculosis with BCG vaccine. After long hesitation for political reasons, in this period, WHO finally entered the field of family planning by promoting worldwide research and development on human reproduction. New efforts were also put into the control of malaria and leprosy. WHO also promote the training of auxiliary health personnel such as China's barefoot doctors and India's traditional birth attendants. Such training was a sounder investment in most developing countries than preparing physicians for predominantly urban medical practice. The fourth decade, 1978-88, was ushered in by a great world conference of WHO and UNICEF in Alma-Ata, a city of the Asiatic part of Soviet Union. In reaction against excessive attention to high technology, the Alma-Ata conference emphasized the great importance of primary health care, preventive and curative, as the best approach to national health policy. This approach, stressing community participation, appropriate technology, and intersectoral collaboration, become the central pillar of World Health Policy. 30 years after its birth, 134 WHO members states reaffirmed their commitment to equality as embodied in the slogan Health for All. The provisions of the safe drinking water and adequate
excreta disposal for all were the objectives of the national of the International Drinking Water Supply and Sanitation Decade 1981 to 90, proclaimed by the UN General Assembly in 1980 and supported by WHO. In this period, every country was encouraged to develop a list of essential drugs for use in all public facilities instead of the thousands of brand name products sold in the world markets. The WHO condemnations of the promotion of artificial infant formula products in developing countries also attracted widespread attention. The worldwide control of infantile diarrhea with oral rehydration therapy was another great advance based on very simple principles. Networks. A 1995 outbreak of Ebola virus in the Congo, which raged for 3 months, unbeknownst to WHO, revealed a startling lack of global public health surveillance and notification systems. So, in 1997, WHO, in collaboration with Canada, rolled out the Global Public Health Intelligence Network GPHNI, which took advantage of information on the internet to function as an early warning system for potential epidemics. The WHO supplements this GPHNI in 2000 with the Global Outbreak Alert Response Network GOARN to analyze events once they were detected. GOARN linked 120 networks and institutes with the data laboratories, skill set, experience to take action swiftly in a crisis. According to the WHO, most of the estimated 5 lakh maternal deaths each year are prevented through family planning to avoid illegal abortions and hygienic education of traditional birth attendants. The WHO has also mounted increasing efforts against cancer, which now takes as many lives in the developing countries as in the affluent ones. The fight against tobacco, the largest single cause of preventable death in both men and women, is part of the WHO effort in every country. Disseminating the simple rules of diet, exercising, non-smoking, prudent use of alcohol, and hygienic working conditions are major objectives of health education and WHO everywhere. The worldwide epidemic of AIDS, acquired immune deficiency syndrome, has presented another challenge to WHO in mounting global efforts to stem the spread of this lethal sexual transmitted virus disease. The WHO is working for the introduction of self-testing so that more people living through HIV know their status and can receive treatment. The World Health Organization WHO characterized COVID-19 as a pandemic in 2021. According to the WHO, a pandemic is declared when a new disease for which people do not have immunity spread around the world beyond expectations. On the other hand, an epidemic is a large outbreak, one that is spread among a population or region. It is less severe than pandemic due to a limited area of spread. WHO and India. What is scenario? India became a part to the WHO on 12 January 1948. A regional office for Southeast Asia is located in New Delhi. Smallpox. In 1967, the total number of smallpox cases recorded in India accounted for nearly 65% of all cases in the world. Of this, 26,225 cases died, giving a grim picture of the relentless fight that lay ahead. In 1967, the WHO launched the Intensified Smallpox Eradication Program. With a coordinated effort by Indian government with the WHO, World Health Organization WHO, smallpox was eradicated in 1977. Polio.
India began the battle against the disease in response to the WHO's 1988 Global Polio Eradication Initiatives with financial and technical help from World Bank. Polio Campaign 2012 The Indian government in partnership with UNICEF, the World Health Organization WHO, the Bill and Melinda Gates Foundation, Rotary International, and the Centers for Disease Control and Prevention contribution to almost universal awareness of the need to vaccinate all children under 5 against polio. As a result of these efforts, India was removed from the list of the endemic countries in 2014. Recently, the Prime Minister addresses the second global COVID virtual summit of the World Health Organization, where he emphasized WHO reforms. What are the reforms suggested by India? Strengthening the public health emergency of international concern PHEIC declaration process. It is important to devise objective criteria with clear parameters for declaring PHEIC. The emphasis must be on transparency and promptness in the declaration process. A PHEIC implies a situation that is serious, sudden, unusual, or unexpected, carries implication for public health beyond the affected state's national border, and may require immediate international action. Funding. Most of the financing for programmatic activities of the WHO comes from extra budgetary contributions, which, though voluntary in nature, are normally earmarked. The WHO enjoys very little flexibility in the use of these funds. There is a need to ensure that extra budgetary or voluntary contributions are earmarked to ensure that the WHO has the necessary flexibility for its uses in areas where they are required the most. Ensuring transparency of funding mechanism and accountability framework. There is no collaborative mechanism wherein the actual projects and activities are decided in consultation with the members states. There is no review with respect to value for money and whether projects are being done as per the member states priorities or if there are abnormal delays. It is also crucial to establish a significant amount of transparency with respect to data reporting and disbursement of funds for increased accountability. Enhancement of the response capacity of the WHO and member states. Implementation of the IHR 2005 has highlighted critical gaps in the basic health infrastructure of member states. This has become more evident in their dealing with COVID-19 pandemic. It is important that the programmatic activities carried out by the WHO under its general program of work should focus on building and strengthening capacities in member states as required under IHR 2005, which are found lacking or deficient on the basis of self-reporting in IHR 2005 done by the member states. Improvement of the WHO's governance structure. Being a technical organization, most of the work in WHO is done in technical committees composed of independent experts. Moreover, considering the growing risk associated with emergence of disease outbreaks, the role of the Independent Oversight and Advisory Committee IOAC responsible for the performance of the WHO Health Emergencies Program WHE becomes extremely crucial. It is important that the member states have a greater say in the functioning of the WHO, given that it is the states which are responsible for the implementation on ground of the technical advice and recommendation coming from the WHO. There is a need to devise specific mechanism like a standing committee of the executive board to ensure effective supervision by member states.
Improvement in IHR implementation. The member states have a self-reporting obligation under IHR, International Health Regulation 2005. However, review of IHR implementation is voluntary. IHR 2005 represents a binding international legal agreement involving 196 countries across the globe, including all the member states of the WHO. Their aim is to help the international community prevent and respond to acute public health risks that have the potential to cross borders and threaten people worldwide. The review of the IHR implementation should continue to be on voluntary basis. It is critical to accord priority to enhance international cooperation, which should be directed to aiding developing countries in areas which they have been identified as lacking the necessary capacities to implement the IHR. Access to therapeutics, vaccines and diagnostic. It has been felt that the TRIPS flexibilities, अब ये नई चीज़ आ गई, provided for public health under Doha Declaration may not be sufficient to deal with crises such as COVID-19 pandemics. TRIPS flexibilities क्या है? इंडियन इकोनॉमी, भैया ये भी बहुत लंबा है, ऐसे तो घुसते हैं. क्या था वो ट्रिप्स? TRIPS. ट्रिप्स एग्रीमेंट. One Macalo tikki, please. Oh, one large fries. डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि PCS चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें. धन्यवाद. डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल. दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है. आज का हमारा विषय है ट्रिप्स एग्रीमेंट. तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है. WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के चलते टाल दिया गया है. इस सम्मेलन में मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी पर समझौता और कोविड-19 टीकों से जुड़े पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा संरक्षण नियमों में छूट देने जैसे मुद्दों पर बातचीत होनी थी. आइए अब नजर डालते हैं ट्रिप्स के बारे में. ट्रिप्स का पूरा नाम ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है. ट्रिप्स बौद्धिक संपदा पर अब तक का सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है. यह 1 जनवरी 1995 से प्रभाव में आया. इसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा प्रशासित किया जाता है. यह बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट और व्यापार गोपनीयता की सुरक्षा पर एक बहुपक्षीय समझौता है. यह पेटेंट्स और IP के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है. यह समझौता बौद्धिक संपदा और व्यापार के बीच संबंधों के महत्व को कानूनी मान्यता प्रदान करता है. 2001 में WTO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए. इसके मुताबिक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति में सरकारें कंपनियों को निर्माताओं को अपने पेटेंट लाइसेंस देने के लिए मजबूर कर सकती हैं. इस प्रावधान को आमतौर पर अनिवार्य लाइसेंसिंग कहा जाता है. 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 92 के तहत केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय आपातकाल या जरूरी परिस्थितियों के मामले में किसी भी समय अनिवार्य लाइसेंस जारी करने की शक्ति है. आइए अब देखते हैं भारत में पेटेंट के इतिहास को.
भारत में पेटेंट से जुड़ा पहला कानून 1856 का अधिनियम 6 था। हालांकि इसे अगले ही साल निरस्त कर दिया गया था। वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन अधिनियम लाया गया। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने पेटेंट अधिनियम 1970 पास किया, जिसने 1911 के अधिनियम को निरस्त एवं प्रतिस्थापित किया। इस अधिनियम के अधिकांश प्रावधान 20 अप्रैल 1972 को पेटेंट नियम 1972 के प्रकाशन के साथ प्रभावी हुए। आगे चलकर पेटेंट संशोधन अधिनियम 1999 लाया गया, जिसे 1 जनवरी 1995 से प्रभावी माना गया। पेटेंट नियम में अंतिम संशोधन 5 मई 2006 से प्रभावी हुआ। आइए अब बारी है आज के सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? कथन 1, ट्रिप्स समझौता 1 जनवरी 1995 से प्रभाव में आया। कथन 2, इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रशासित नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। Dear viewers, Drishti IAS welcomes you to the new series of To The Point. Today's topic of discussion is TRIPS Agreement. First of all, let's see why is it in the news. WTO's 12th Ministerial Conference has been postponed due to new variants of coronavirus. In this conference, issues like agreement on subsidy for fisheries and exemption of patent and other intellectual property protection rules related to COVID-19 vaccines were to be discussed. Now let's discuss about the TRIPS agreement and Indian law. The TRIPS agreement was negotiated in 1995 at the WTO. It requires all its signatory countries to enact domestic law. It guarantees minimum standards of IP protection. Such legal consistency enables innovators to monetize their intellectual property in multiple countries. In 2001, the WTO signed the Doha Declaration, which clarified that in a public health emergency, governments could compel companies to license their patents to manufacturers, even if they did not think the offered price was acceptable. This provision, commonly referred to as compulsory licensing, was already built into the TRIPS agreement, and the Doha Declaration only clarified its usage. Under Section 92 of the 1970 Indian Patents Act, the central government has the power to allow compulsory licenses to be issued at any time in case of a national emergency or circumstances of extreme urgency. Intellectual property rights are the rights given to persons over the creation of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. Now let's understand about the arguments in favor of relaxing TRIPS rules. Relaxing the TRIPS rules would make it easier for developing and underdeveloped countries to access vaccines. It is unethical and immoral for pharmaceutical companies to be looking to make profits out of the vaccines. Life-saving drugs and vaccines should be made available to everyone.
With regard to the current pandemic situation, it is said that no one is safe unless everyone is safe. Therefore, it is crucial that vaccines are made available to everyone in affected countries since it can easily spread to all countries, as was seen in the first wave. Now, after the arguments in favor, let's discuss about the arguments made by opponents of TRIPS waiver. The opponents of TRIPS waiver claim that unless people or companies are rewarded for their inventions and innovations, they would be unable to recoup amounts invested by them in research and development. If there would be the right to monopolize production, there will also be no incentive to innovate. And they also claim that the developing world does not have the capacity to manufacture vaccines or drugs on a large scale on their own. Now it's time for the practice question. Consider the following statements. 1. The TRIPS agreement guarantees minimum standards of IP protection. 2. Intellectual property rights are the rights given to persons over the creation of their minds. Which of the above statement or statements is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, or neither 1 nor 2. Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for the next episode. ठीक है जी, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं हमने कहाँ पे आया था टिप्स। अरे ट्रिप्स 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 कहाँ आया था यार? ट्रिप्स 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 एक मिनट ट्रिप्स ये आया था। एक्सेस टू थेरेप्यूटिक्स वैक्सीन्स एंड डायग्नोस्टिक्स, है ना। It has been felt that the TRIPS flexibilities provided for public health under Doha Declaration may not be sufficient to deal with the crisis such as COVID-19 pandemic. It is important to ensure fair, affordable, and equitable access to all tools for combating COVID-19 pandemic, and therefore the need to build a framework for their allocations. ठीक है। अब है यहाँ पर क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट ऑन इन्फेक्शियस डिजीज एंड पेंडेमिक्स। इसमें क्या है कि देयर इज अ नीड टू द क्रिएट अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एंड सपोर्ट टू मेंबर states on international health regulation, preparedness of infrastructure, human resources, and relevant health systems capacities such as testing and surveillance systems. Enhancement of capacities of countries in preparation for and response to infectious disease of pandemic potential, including guidance on effective public health and economic measures for health emergencies by leveraging a multidisciplinary approach which includes social and science alongside health and national sciences. Role of hosted partnership in pandemic management. The risk imposed on humankind by new influenza viruses causing more disease outbreaks are very real. There is an urgent need for global community to address this issue by making bold efforts and ensuring vigilance and preparedness to our healthcare system. The primary objective should be to improve capacity for global pandemic prevention, preparedness, and response, and strengthening our ability to fight back any such pandemic in future. What is the role of the WHO in World Health concerns? Air pollution and climate change. 9 out of 10 people breathe polluted air every day. In 2019, air pollution is considered by the WHO as the greatest environmental risk to health. Microscopic pollutant in the air can be penetrate respiratory and circulatory system, damaging the lungs, heart, and brain, killing 7 million people prematurely every year from disease such as cancer, stroke, heart, and lung diseases. The primary cause of air pollution, burning fossil fuels, is also a major contributor to climate change, which impacts people's health in different ways. Between 2030 and 2050, climate change is expected to cause 250,000 additional deaths per year from malnutrition, malaria, diarrhea, and heart stress. Non-communicable diseases such as diabetes, cancer, and heart disease are collectively responsible for over 70% of all death worldwide on 41 million people. The rise of these
disease has been driven by 5 major risk factors: tobacco use, physical inactivity, the harmful use of alcohol, unhealthy diets, and air pollution. ठीक है. These risk factors also exacerbate mental health issues. The suicide is the second leading cause of death among 15 to 19 years old. Global influenza pandemic. The WHO is constantly monitoring the circulation of influenza viruses to detect potential pandemic strain. 153 institutions in 114 countries are involved in global surveillance and response. Fragile and vulnerable settings. More than 1.6 billion, 22% of the global population live in places where protracted crisis through a combination of challenges such as drought, famine, conflict, and population displacement and weak health services leave them without access to basic care. Antimicrobial resistance. It is the ability of bacteria, parasites, viruses, and fungi to resist modern medicines, which threatens to send us back to a time when we were unable to easily treat infections such as pneumonia, tuberculosis, gonorrhea, and salmonellosis. The inability to prevent infections could seriously compromise surgery and procedures such as chemotherapy. In 2017, around 6 lakh cases of tuberculosis were resistant to rifampicin, the most effective first-line drugs, and 82% of these people had multi-drug resistant tuberculosis. Drug resistance is driven by the overuse of antimicrobials in people, but also in animals, especially those used for food production as well as in the environment. WHO is working with these sectors to implement a global action plan to tackle antimicrobial resistance by increasing awareness and knowledge, reducing infections, and encouraging prudent use of antimicrobials. Ebola and other high threat pathogens. In 2018, the Democratic Republic of the Congo saw 2 separate Ebola outbreaks, both of which spread to cities of more than 1 million people. One of the affected provinces is also in an active conflict zone. WHO R&D blueprint identifies diseases and pathogens that have the potential to cause a public health emergency but lack effective treatments and vaccines. The watch list for priority research and development includes Ebola, several others, hemorrhagic fevers, Zika, Nipah, Middle East respiratory syndrome, coronavirus, MERS-CoV, and severe acute respiratory syndrome (SARS) and disease X, which represent the need to prepare for an unknown pathogen that could cause a serious epidemic. Weak primary health care. Primary health care is usually the first point to contact people have with their health care system, and ideally should provide comprehensive, affordable, community-based care throughout life. Yet many countries do not have adequate primary health care facilities. This neglect may be lack of resources in low or middle income countries, but possibly also a focus in the past few decades on single disease programs. Vaccine hesitancy. It is the reluctance or refusal to vaccinate despite the availability of vaccines threatens to reverse progress made in tackling vaccine preventable diseases. Measles, for example, has seen a 30% increase in cases globally. The reason for this rise are complex and
not all of these cases are due to vaccine hesitancy. However, some countries that were close to eliminating the disease have seen a resurgence. The WHO has identified complacency, inconvenience in assessing vaccines, and lack of confidence as key reasons underlying hesitancy. Dengue. It is a mosquito-borne disease that causes flu-like symptoms and can be lethal and kill up to 20% of those with severe dengue. Has been a growing threat for decades. A high number of cases occur in the rainy seasons of countries such as Bangladesh and India. WHO dengue control strategy aims to reduce death by 50% by 2020. HIV. The progress made against HIV has enormous in terms of getting people tested, provided them with antiretrovirals. 22 millions are on treatment, are providing access to preventing measures such as pre-exposure prophylaxis, pre-EP, which is when people at risk of HIV take antiretrovirals to prevent infections. बहुत लंबा है भाई ये तो यार. Today, around 37 million worldwide live with HIV, reaching people like sex worker, people in prison, men who have sex with men, or transgender people is hugely challenging. Often these groups are excluded from health services. A group increasingly affected by HIV are young girls and women aged 15 to 24 who are particularly at high risk and account for 1 in 4 HIV infections in sub-Saharan Africa, despite being only 10% of the population. The WHO is working with countries to support the introduction of self-testing so that more people living with HIV know their status and can receive treatment or preventive measures in the case of a negative test result. COVID-19. The WHO characterized COVID-19 as a pandemic in 2021. The coronavirus COVID-19 outbreak came to light when on December 31st, 2019, China informed the WHO, World Health Organization, of a cluster of cases pneumonia of an unknown cause in Wuhan city in Hubei province. Subsequently, the disease spread to more province of China and to the rest of the world, with the WHO declaring it a global health emergency. The virus has been named SARS-CoV-2, and the disease is now called COVID-19. Test for COVID-19. The first test that samples of all suspected patients are sent for is the polymerase chain reaction (PCR) test. If that is positive, the sample is sent to the National Institute of Virology in Pune, which is the only government laboratory currently doing genome sequencing for final confirmation. Monkeypox. In July 2022, WHO has declared global health emergency and sounded the highest alarm on the monkeypox virus. ये भी हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर. The virus has spread to non-endemic countries. This virus, चलो हम यहाँ पे monkeypox से जरा हम नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे.